हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल इन विच अकॉर्डिंग टू आइवरी, हर्षी चेस एंड ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट it was concluded that genetic material is DNA. And you know DNA type of nucleic acid that you have two types, DNA and RNA. ठीक है, तो DNA जेनेटिक मटेरियल है लेकिन RNA नहीं। Why? क्यों ऐसा? It means genetic material have some properties, some features, उसका कुछ प्रॉपर्टीज है और जो केमिकल उस प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है उसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। दैट आर प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फर्स्ट, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। Structurally and chemically more stable. You know, DNA is more stable than RNA. DNA is more stable than RNA. Why? DNA is more stable than RNA. क्या रीजन है? Why? फर्स्ट पॉइंट, फ्री 2OH ग्रुप इन RNA makes it easily degradable. Okay, and in base RNA bears contains uracil base at the place of thymine. It means presence of uracil at the place of thymine. RNA is unstable or less stable from DNA. Second character, it should be able to generate its replica. It means जेनेटिक मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टीज हो कि वह अपना कॉपी का फॉर्मेशन कर सके। रिप्लिका मीन्स कॉपी। जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रिप्लिका, और यह कैपेसिटी डीएनए में है। डीएनए फॉर्म्स न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड रिप्लिकेशन, and RNA is also formed from DNA. RNA का फॉर्मेशन भी डीएनए से होता है by the process transcription. Okay. Next, it should be provide the scope for slow changes via mutation which are required for evolution. Mutation is essential for evolution. Mutation means change. अगर चेंज नहीं होगा तो अर्थ पर जो भी लिविंग्स है कंटिन्यू वही स्पेसीज रहेगा, कोई दूसरा स्पेसीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। आज अर्थ पर जितनी भी स्पेसीज है वह म्यूटेशन के कारण ही है। इट मीन्स म्यूटेशन इज इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन, एंड म्यूटेशन इज द फीचर्स ऑफ properties of genetic material. RNA and DNA both shows mutation. Mutation occurs in both, in RNA and DNA.
but due to unstability RNA mutate faster than the DNA. वो बहुत ज्यादा फास्टर रेट से म्यूटेट करता है। यही कारण है वायरस म्यूटेट फास्टर बिकॉज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज RNA. In modern time, COVID-19 virus also mutate very fastly or rapidly. ऐसा डाटा है कि अब तक लगभग 160 टाइम्स 180 टाइम्स कोविड-19 वायरस म्यूटेट कर चुका है। क्यों किया? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ RNA as genetic material. It means RNA and DNA both mutate, but RNA mutate faster than DNA. Mutate faster than DNA. Okay. And last characteristic feature of genetic material is it should be able to express itself in phenotype. Express itself in phenotype. It means genetic material store information for different characters, for different traits, and for the expression of phenotype. External characters, expression of stored information is essential. सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है उसका एक्सप्रेशन जरूरी है, और वह एक्सप्रेशन जनरली डीएनए के कंडीशन में होता है। डीएनए पहले आरएनए का फॉर्मेशन करता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन के बाद कैरेक्टर और ट्रेट्स एक्सप्रेस होता है। ओके, एंड इन केस ऑफ वायरस, इन वायरस जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, and RNA of virus first of all forms DNA by reverse process. In general livings DNA forms RNA, DNA form RNA, but in virus reverse process occurs due to presence of a specific enzyme that is called reverse transcriptase. Transcriptase is responsible for transcription process. Transcription means formation of RNA from DNA, and reverse transcription means formation of DNA from RNA. It means in virus, reverse transcriptase enzyme present that responsible for the reverse transcription by which DNA is formed from RNA. Again, DNA forms RNA that is responsible for protein formation. ओके, तो जो हम देखा कि यह जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जेनेटिक मटेरियल्स का। ओके, अब हम लोग देखेंगे रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए मोलिक्यूल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डीएनए मोलिक्यूल्स। एक डीएनए से दो डीएनए मोलिक्यूल का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा? रिप्लिकेशन कहलाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए मोलिक्यूल्स फ्रॉम प्रीवियस डीएनए मोलिक्यूल इज कॉल्ड रिप्लिकेशन। नाउ सी replication of DNA. Replication of DNA means formation of new DNA molecules from pre-existing molecules. Formation of new DNA molecules from pre-existing molecules. Okay. And due to replication of DNA, all livings have capacity to reproduce. In livings, reproduction process in cell division process occurs due to replication of DNA. First of all,
duplication or replication of DNA in cell takes place after that cell divides by cell division. So DNA replication is very important process. Okay, now replication process occurs in S phase of cell cycle. S phase of cell cycle, and due to replication of DNA, S means synthetic phase, it means synthesis of DNA molecule takes place. And replication of DNA in S phase occurs in nuclear DNA. जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है उस डीएनए का रिप्लिकेशन एस फेज में होता है. एंड इन साइटोप्लाज्मिक डीएनए रिप्लिकेशन में भी अकर्स इन एनी स्टेज ऑफ सेल साइकिल. इट मीन्स इंटरफेज के किसी स्टेज में या किसी स्टेज में जाकर के वह रिप्लिकेट कर सकता है. ठीक है. इन डीएनए replication occurs by mainly three methods, but in these three methods one method is most acceptable. ऐसे साइंटिस्ट का मानना है कि 3 मेथड से रिप्लिकेशन होता है. 3 मेथड्स ऑफ रिप्लिकेशन. 3 मेथड्स ऑफ रिप्लिकेशन. फर्स्ट, कंजर्वेटिव. सेकेंड, डिस्पर्सिव. एंड थर्ड, सेमी कंजर्वेटिव. Conservative, dispersive and semi-conservative, these are the 3 methods according to scientists. साइंटिस्ट का मानना था कि 3 मेथड से पॉसिबिलिटी है डीएनए रिप्लिकेट करने का. कंजर्वेटिव, कंजर्व मीन्स सेव. ऑल मोलिक्यूल्स ऑफ पेरेंटल डीएनए ट्रांसफर इनटू ऑफ स्प्रिंग डीएनए या डॉटर डीएनए. अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव में जैसे सपोज दैट दिस इज डीएनए मोलिक्यूल्स. मान लिया जाए ये डीएनए मोलिक्यूल्स है एंड रिप्लिकेशन अकर्स बाय 3 मेथड्स. इन कंजर्वेटिव मेथड बोथ डॉटर डीएनए इज एज लाइक पेरेंटल, दिस लाइक. Both daughter DNA is as like parental. In dispersive, some part of DNA of both strand became dispersed and some part of a strand form new. कुछ पार्ट जो है पेरेंटल डीएनए का है और कुछ पार्ट नया बन गया और इसका कोई डिफिनिट पैटर्न नहीं है. नो एनी पैटर्न. कुछ न्यू फॉर्म में है और कुछ पेरेंटल फॉर्म में है. दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव मेथड. दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव मेथड. एंड सेमी कंजर्वेटिव. सेमी मीन्स हाफ. कंजर्वेटिव मतलब सेम. It means half part of parental DNA is conserved in daughter DNA. And you know DNA of 2 strand. It means 1 strand in each daughter DNA is parental type and 1 in each is new type of strand. 1 in each is new type. And this is called semi-conservative method, and this method is most acceptable method. Okay. First of all, the
मेथड ऑफ DNA replication or semi-conservative method of DNA replication was proposed by Bartson and Crick. Proposed by Bartson and Crick and experimentally proved by Taylor and Messelson-Stahl. दो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, एक टेलर के द्वारा, दूसरा मेसेल्सन-स्टॉल के द्वारा एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था. Taylor in Vicia fava and in E. coli Messelson and Stahl. Okay. Now see, first proposal of semi-conservative mode of DNA replication was given by Bartson and Crick and experimentally proved by Taylor on experiment on Vicia fava also called brood bean, and Messelson-Stahl experimented on Escherichia coli E. coli. अब देखें पहले एक्सपेरिमेंट ऑफ टेलर. फर्स्ट ऑफ ऑल टेलर डेवलप्स द Vicia fava or brood bean in radioactive tritiated thymidine. It means in thymine hydrogen is present and hydrogen is 1,1, but it's convert into radioactive or radioactive hydrogen was used by Taylor in this case 1 and 3, and this is called tritiated thymidine. Thymine having isomers, मोलिकुलर में डिफर कर गया ना. ओके, सो रेडियो एक्टिव क्रिएटेड थायमिडीन, और ये कब तक देते रहे, जब तक कि सारा सेल में रेडियो एक्टिव थायमिडीन न चला जाए. ओके, मीन्स फॉर सेवरल जनरेशन टेलर सप्लाइड रेडियो एक्टिव ट्राइसिएटेड थायमिडीन, and after that radioactive chemical was removed and replaced by non-radioactive chemical. पहले तो सारे सेल में रेडियो एक्टिव केमिकल चला जाए, इसके लिए कई जनरेशन तक उन्हें सप्लाई किया, और इसके बाद रेडियो एक्टिव केमिकल को हटा दिए और उसके जगह पर क्या यूज किए, नॉन रेडियो एक्टिव केमिकल. इन दिस केस ही फाउंड दैट, क्या उन्होंने देखा, इसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो नया डीएनए मोलिक्यूल बना, उस न्यू डीएनए मोलिक्यूल का एक स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव का है, दूसरा स्ट्रैंड नॉन रेडियो एक्टिव का है. इट मीन्स वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ट्रांसफर इन डॉटर डीएनए while other strand form new. Okay, now see, Taylor supplied roots of Vicia fava with radioactive tritiated thymidine for a few days till all the chromosomes are dividing cells become radioactive. जब तक कि रेडियोएक्टिव नहीं हो जाए तब तक देते रहे. Thereafter the radioactive chemical was withdrawn and replaced by non-radioactive chemicals. Okay, observation: one of two chromatid of each chromosome remained radioactive while the second chromatid was non-radioactive. प्रत्येक क्रोमोजोम का एक क्रोमैटिड में रेडियोएक्टिव है और दूसरा नॉन रेडियोएक्टिव है. इट मीन्स one strand of parental DNA transfer into daughter DNA. Okay. After that, Messelson and Stahl proved
semi-conservative mode of DNA replication by experiment on E. coli. Now see, experiment of Michelson and Astol. Michelson and Astol proved that semi-conservative mode of replication by experiment on E. coli. E. coli grow fastly and in every 20 minutes E. coli multiply its number. 20 मिनट्स में ई कोलाई अपना नंबर दूना कर लेता है. ओके, अब इन्होंने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मेसेल्सन एंड अस्टॉल ग्रो ई कोलाई इन अमोनियम क्लोराइड मीडियम एंड टेक नाइट्रोजन ऑफ आइसोटोप और हैवी आइसोटोप ऑफ नॉर्मल नाइट्रोजन. हैवी आइसोटोप ऑफ अमोनियम क्लोराइड का नाइट्रोजन आइसोटोप लिया गया, हैवी आइसोटोप. ग्रो ई कोलाई इन ए मीडियम कंटेनिंग N15 NH4Cl for many generation, and N15 is heavy isotope of nitrogen, not radioactive. याद रखना है कि N15 रेडियोएक्टिव मोलिक्यूल नहीं था, वह सिर्फ मोलिकुलर वेट के आधार पर डिफर था. ओके, एंड आफ्टर सेवरल जनरेशन, कई जनरेशन तक N15 में ग्रो कराया गया. क्यों कराया गया? क्योंकि जितने भी डॉटर डीएनए बनने वाला है, सभी डीएनए का दोनों स्ट्रैंड का नाइट्रोजन N15 हो जाए. क्यों किया गया? N15 was incorporated into newly synthesized DNA for incorporation of N15 molecule in newly formed DNA. Okay. After that E. coli means E. coli having N15 nitrogen or again grow in normal medium. Normal medium means having N14 nitrogen. पहले सारा डीएनए को कन्वर्ट कर दिया गया N15 में, उसके बाद उस ई कोलाई को ग्रो कराया गया N14 मीडियम में. देखिए, cell with heavy DNA was grown in N14 NH4Cl medium. Okay, and N15 and N14, these two types of DNA or DNA having two types of nitrogen are separated by a process called cesium chloride centrifugation gradient density और सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट डेंसिटी इन सीजियम क्लोराइड. सीजियम क्लोराइड के हेल्प से डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पर, डेंसिटी में डिफरेंस के आधार पर दोनों डीएनए मोलिक्यूल को अलग किया गया. सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसिटी ग्रेडियंट वाज यूज्ड टू डिफरेंशिएट हैवी डीएनए. हैवी डीएनए मींस हैविंग बोथ स्ट्रैंड ऑफ N15 from normal DNA, or light DNA means having both a strand of N14. Okay, after that the various samples were separated independently on cesium chloride gradient to measure the densities of DNA. अब उसके बाद डीएनए को अलग किया गया, अलग करने के बाद उसके डेंसिटी को मेजर किया गया. अब क्या ऑब्जर्वेशन हुआ? ऑब्जर्वेशन देखिए, एक्सट्रैक्टेड डीएनए had a hybrid or intermediate density. न तो वह लाइट के जैसा न ही हैवी के जैसा है, हाइब्रिड है. इट मीन्स न्यू डीएनए हैविंग वन स्ट्रैंड विथ N14 एंड अनदर स्ट्रैंड विथ N15. ओके, नाउ सी फिगर देखते हैं, फिगर से क्लियर होगा. This is DNA having both a strand of N15. Having both a strand of N15, it means
it is heavy DNA. And in cesium chloride density gradient or centrifugation density gradient, it is deposited in bottom due to high density. मोलिकुलर वेट ज्यादा होने के कारण किधर जमा होगा? बॉटम के पास. दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स का डायरेक्शन मीन्स इसको अगर ऐसे करें तो डेंसिटी वाला ज्यादा नीचे आएगा. तो यह होगा, देखो हैवी डीएनए का क्वेश्चन दिखाया. इन नेक्स्ट जनरेशन ई कोलाई multiply in 20 minutes, every 20 minutes. It means after 20 minutes in first generation, one DNA molecules produce two DNA molecules. And first of all, separation of this DNA molecules or separation of a strand of this DNA molecule occurs. इसका दोनों स्ट्रैंड पहले अलग हो गया. And each parental strands form a new strand. तो यह जो मीडियम ग्रो कराया गया था किसमें? सबसे पहले तो N15 में कराया गया, फिर ट्रांसफर कर दिया गया N14 में. इट मीन्स वन स्ट्रैंड इज विथ N15 in each DNA, N15, and other is with N14. And this type of DNA is called hybrid DNA. Okay, and in density gradient method, यहाँ हैवी था तो हैवी से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, आगे की तरफ होगा हाइब्रिड. In next generation means again after 20 minutes, it means from first 40 minutes in generation 2. देखिए, there are 4 strand of 2 DNA. अब इन दोनों डीएनए का सभी स्ट्रैंड अलग हो गया. तो कितना स्ट्रैंड अलग होगा? तो 4 में से 2 15 वाला और 4 14 वाला. N15 ब्लैक से लिखते हैं N15 and N15. Okay, and 2 are with N14. No, N14, N14, N14. Okay, and ये 2 पैरेंटल स्ट्रैंड था, डीएनए था, इससे 4 स्ट्रैंड बन गया. एंड ईच स्ट्रैंड फॉर्म्स ए न्यू स्ट्रैंड. प्रत्येक स्ट्रैंड पर एक नया बन गया. और जो नया बनेगा मीडियम के अनुसार, कैसा कल्चर मीडियम था? N14 वाला, तो सभी के साथ आ गया N14. ओके, अब देखिए, दीज 2 डीएनए लाइट डीएनए एंड दीज 2 डीएनए हाइब्रिड डीएनए. यहां दोनों तरह का डीएनए बन गया. कुछ हाइब्रिड बना और कुछ लाइट बना. डेंसिटी ग्रेडियंट में हैवी का पोजीशन यहां है, हाइब्रिड का पोजीशन यहां है, तो हाइब्रिड का एक पोजीशन हो गया. ये शो कर रहा है हाइब्रिड को. और ये लाइट के लिए हाइब्रिड मीन्स N15 एंड N14. लाइट N14. ठीक है ना. अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं. नाउ सी सम क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, ए हाइब्रिड डीएनए रिप्लिकेट्स इन N15 मीडियम. After first replication, medium is changed from N15 to N14. Then find the ratio of light DNA, not ratio, percentage. Find the percentage of light DNA in second generation. क्वेश्चन समझ में आ गई ना. अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा डीएनए लिया गया है? तो हाइब्रिड डीएनए. हाइब्रिड डीएनए मीन्स 1, 15 and other 14. This line हाइब्रिड डीएनए.
ग्रोन रिप्लिकेट इन N15 मीडियम, N15 मीडियम। अब इस N15 मीडियम में इस डीएनए का दोनों स्ट्रैंड अलग हो गया, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गया, दोनों को N15 मीडियम में ग्रो कराया गया। इट मीन्स न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड में भी क्या होगा, न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड इज ऑल्सो N15, दिस लाइक, दिस इज कॉल्ड हैवी, दिस इज हाइब्रिड, ओके। रिप्लिकेट्स इन N15 मीडियम, यहां तक हो गया। आफ्टर फर्स्ट रिप्लिकेशन मीडियम इज चेंज फ्रॉम N15 टू N14। अब इसके बाद मीडियम को चेंज कर दिया गया। अब कैसा मीडियम है जी, तो N14 लिया गया। अब देखिए यहाँ 2 डीएनए का 4 स्ट्रैंड, चारों स्ट्रैंड को अलग कीजिए। 4 में से 3 N15 है, 1 N14 है। N15, N15, N15 and 1 is N14, 4 स्ट्रैंड। कैसा मीडियम है, N14, इट मीन्स ऑल न्यूली फॉर्म्ड डीएनए स्ट्रैंड विथ N14, सब N14 वाला ही होगा। Okay, these 3 DNA hybrid and this is light in question में क्या है, find the percentage of light DNA, total 4 DNA molecules are formed in second generation in which one is light, it means percentage is 25%, okay, out of 4 1 is light, 3 are hybrid, okay। Next question, a normal DNA replicates in N14 medium, normal DNA means both with N14, both are strand with N14 replicates in N14 medium, तो ये प्रोड्यूस करेगा 2 डीएनए, दोनों स्ट्रैंड इसका अलग हुआ है N14 N14, न्यूली ऑल्सो N14, 2 मोलेक्यूल बना। आफ्टर फर्स्ट जनरेशन मीडियम इज चेंज, अब यहां मीडियम चेंज कर दिया गया फ्रॉम N14 टू N15, यहां क्या डाल दिया गया, कितना बनेगा, 4 स्ट्रैंड को अलग कर दीजिए पहले आप, चार स्ट्रैंड, ठीक है ना। अब न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड कैसा होगा, यहाँ N14 था, यहाँ मीडियम कैसा होगा N15, तो जो भी न्यूली फॉर्म होगा वो N15 होगा। ऑल आर हाइब्रिड इन क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड डीएनए, आंसर इज all are hybrid means 100%, ओके। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखें, ई कोलाई विथ लाइट डीएनए multiplies in N15 medium, then find the number of different types of DNA, different types of DNA means light, heavy or हाइब्रिड डीएनए आफ्टर 60 मिनट्स, 60 मिनट्स के बाद किस डीएनए का नंबर क्या होगा, ध्यान दीजिए। सिंपल लाइट डीएनए मीन्स, सिंपल मैं लिख रहा हूं, फिगर नहीं बना रहा हूं मैं अब, लाइट डीएनए मीन्स विथ N14 एंड N14, ओके, मल्टीप्लाई इन N15 मीडियम, 1 डीएनए फॉर्म्स 2 डीएनए, यहाँ 2 डीएनए बनेगा, सिंपल इस रूप में देखो, N14
and new N15, N14, N15, 20 मिनट्स यहां हुआ फर्स्ट जनरेशन. सेकेंड जनरेशन अगेन 20 मिनट्स, नेक्स्ट 20 मिनट्स. 2 DNA forms 4 DNA, 1 2 3 4. देखिए तो दोनों स्टैंड, वन विथ 1 N14, N15, N15 and N14. These all are parental strand and formation of new strand. मीडियम कैसा है? N15 है तो नया जो ही बनेगा N15 वाला बनेगा. N15, 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 N15. It means 2 heavy and 2 hybrid. 20 minutes, so 20, 20, 40 minutes. In question 60 minutes, it means one generation और बढ़िया. अगला 20 minutes में. These 4 DNA produce 8 DNA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N14, N15, N14, N15, इसका 15, 15, 15, 15, 15, 15, 14, 15. Okay, and their parental strand and newly formed DNA. जो नया बना कैसा होगा? N15 वाला, because medium is N15 in justice. N15, 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 also N15, 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 N15. देखें, दिस इज हाइब्रिड, हैवी, 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 हाइब्रिड, हैवी. ठीक है ना? तो देखिए यहां कितना जनरेशन हुआ? 3 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन. फॉर्मूला याद रखेंगे, 2 पर पावर n कर दें, ये नंबर ऑफ डीएनए होगा, नंबर ऑफ डीएनए मोलिक्यूल 2 पर पावर n. n जनरेशन, 3 जनरेशन, 2 पर पावर 3 मीन्स 8 डीएनए मोलिक्यूल्स बना. अब ध्यान दीजिए, 8 डीएनए में हमारे पास जो भी पेरेंटल है वो N14 का 2 स्ट्रैंड है और इस 2 N14 का कहीं चेंजिंग नहीं होगा, वो 2 N14 ही रहेगा और बाकी सब क्या बन जाएगा? N15 जैसा मीडियम हो. तो 2 N14 स्ट्रैंड है, उसके साथ सब अब आएगा N15 वाला, तो ये 2 डीएनए बनेगा N14 और N50 वाला, मीन्स 2 हाइब्रिड बनेगा. देखिए एक हाइब्रिड यहां है और एक हाइब्रिड यहां. ओनली 2 आर हाइब्रिड एंड ऑल अदर्स आर हाइब्रिड. तो इस 8 में से क्या हो गया? 2 हाइब्रिड एंड 6 हाइब्रिड. ठीक है ना? सिंपल, यानी बिना, तो मैं बता दिया आप लोग को डिटेल्स में, आप डायरेक्ट थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बनेगा. क्या करना है? मान लिया जाए अगर हम यहां कर दें लाइट के जगह पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा. यहां हम लाइट कर दें और 15 मिनट ही छोड़ देते हैं, यहाँ N15 ही, और 60 मिनट की बात करें तब क्या होगा? ध्यान दीजिए. तो लाइट डीएनए है, इसका मतलब है कि एक 14 है, एक 15 है.
एक 14 और एक 15। मीडियम कैसा है, N15। तो सारा नया डीएनए बनेगा स्ट्रैंड N15 वाला, लेकिन एक N14 है। इट मीन्स 8 तो बनेगा, 8 में से एक हाइब्रिड होगा और 7 हैवी होगा, बिकॉज ओनली वन strand is of N14 and all others are with N15. Okay.